شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہارمو قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھ لیں تو انشاءاللہ شوگر، موٹاپا، کینسر، اندرونی اور بیرونی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ خدارا مہنگی مہنگی دوائیوں سے جان چھڑوا لیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے باقی ہر طریقے آزماتے ہیں، لیکن اپنی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی طاقت ہے جو ہمارے جسم کی ہر بیماری کو ختم کر سکتی ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو۔ ایک بار یقین کے ساتھ آپ صبح سویرے اس سورت کو پڑھیں اور اس سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر آپ دیکھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام بیماریاں آپ کے جسم سے کیسے نکلتی ہیں۔ یہ سورت کون سی ہے جسے آپ نے صبح اٹھ کر پڑھنا ہے اور اس سورت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ والو، جو سورت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سورت مبارکہ سورہ رحمان ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سورت کی تلاوت تو ہم اکثر سنتے ہیں اور اس کی تلاوت تو ہم اکثر کرتے ہیں، ہمیں شفا تو نہیں ملی۔ آپ نے سورت کی تلاوت اس طریقے سے کرنی ہے جیسے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس طریقے پر تلاوت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ضرور ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ دوستو، جب کوئی ڈاکٹر مریض کو دوائی دیتا ہے تو اس کے استعمال کا پورا طریقہ بتاتا ہے اور ساتھ میں پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اگر دوائی اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، اور اگر اس طریقے پر استعمال نہ کی جائے تو دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ ہم لوگ وظائف تو کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم وہ طریقہ نہیں اپناتے جو طریقہ بتایا جاتا ہے، اور نہ ہی وظیفے کے لیے کوئی پرہیز کرتے ہیں۔ تو آپ سورہ رحمان کی تلاوت اس طریقے سے کر کے دیکھیں جو طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ یقین کیجئے کہ کائنات کی کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی ذہنی الجھن ہو، کوئی بھی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جنات کا سایہ ہو، آپ اس سورت کے ساتھ اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں گے۔ سورت رحمان ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیر بدہاپے ہے۔ یاد رکھیے، الرحمن اللہ ذوالجلال والاکرام کا صفت ہے جو بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو چاہے وہ کسی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے کرتا ہو، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ بالخصوص سماعت قرآن کے سلسلے میں جب آپ آنکھیں بند اور ذہن کو خالی کر کے صرف اللہ تعالیٰ کا تصور باندھ کر بیٹھتے ہیں تو قلب و ذہن میں اللہ کی یکسوئی آپ کو رحمت کے نور سے مستغرق کر دیتی ہے۔ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی ہے۔ منفی سوچ یا خیالات کے رد عمل سے جنم لینے والی یہ تمام بیماریاں جسم کو دماغ کی طرح چھاٹ جاتی ہیں، تاہم اس منفی سوچ کو مثبت سوچ کے پاکیزہ جذبوں کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سید عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے اور اس کی داد رسی کرتا ہے۔ سورہ رحمان کا نام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل و کرم کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورت رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، خانہ، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں
जिनसे हमें गफलत बरतनी चाहिए। ये आयत दोहराने से कि ये तुम्हारे रब की नेमतें हैं जिन्हें तुम झुटलाते हो, ये सूरत हमें बताती है कि हम अपने रब की किसी भी नेमत का इनकार न करें। सूरह रहमान अल्लाह ताला की रहमतों को लामहदूद फहरिस्त को खूबसूरती से पेश करती है। ये दिल को छू लेती है और सच्चे ईमान वालों के आंखों में आंसू लाती है। इंसानों में हक को नजरअंदाज करने की कमजोरी है। हम जानते हैं कि हर चीज फानी है, इसके बावजूद हम दुनियावी दौलत और आसाइशों के असूल में दीवाने हैं। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस जिंदगी में हमारे पास जो कुछ है वो मुस्तकिल नहीं है। हमारे खानदान और दोस्त हमें छोड़ सकते हैं, अच्छी सेहत में कमी आ सकती है, हमारी दौलत खत्म हो सकती है, फिर भी हम मगरूर और मुतकब्बिर रहते हैं। सूरह रहमान बार बार हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की याद दिलाती है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफा है। हमें चाहिए कि हम दुनिया के लिए काम करें और नेक अमाल में मशगूल हों और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। हमें मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों की हैसियत से सूरत रहमान को दिल से सीखना अमन सुकून का बाइस साबित हो सकता है। अपने आप को अल्लाह के मुख्तलिफ एहसानात की याद दिलाकर हम तनाव और जहनी दबाव का मुकाबला कर सकते हैं और अपने ईमान को भी मजबूत कर सकते हैं। सईदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह हदीस, सूरह वाक़िया और सूरत रहमान की तिलावत करने वाले को ज़मीन और आसमान की बादशाहत में साकिन अल फिरदौस यानी जन्नतुल फिरदौस का माकीन पुकारा जाता है। और रहमान इस आयत की शान नज़ुल के बारे में एक कौल ये है कि जब सूरह फुरकान की आयत नंबर 60 नाजिल हुई जिसमें रहमान को सजदा करने का हुक्म दिया गया, तो कुफारे मक्का ने कहा कि रहमान क्या है, हम नहीं जानते। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत रहमान नादिल फरमाई कि रहमान जिसका तुम इनकार करते हो वो वही है जिसने कुरान पाक को नादिल फरमाया। और एक कौल ये है कि अहले मक्का ने जब कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कोई बशर सिखाता है, तो ये आयत नादिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रहमान में कुरान पाक अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सिखाया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास कुरान पाक बज़ाहिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से आया, लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कुरान सिखाया। मखलूक में से हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं, बल्कि आपका इल्म मखलूक के वास्ते के बगैर अल्लाह ताला की अता से है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कुरान पाक के मुश्तबाहात का इल्म भी दिया गया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने सारा कुरान अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सिखा दिया, तो इसमें मुतशाबिहात का इल्म भी आ गया कि ये भी कुरान पाक का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। तर्जमा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़िरा बनाना सिखाई, चुनाचा इरशाद बारी ताला है, वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, और हमने तुम्हारे फायदे के लिए इसे जंगी लिबास की सन्नत सिखा दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान सिखाई, जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका इजहार करते हुए फरमाया, या अय्युहन्नासु उल्लिमनाहु मंतिक़त तैर। तर्जमा, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तिब्बे तौरात और इंजील का इल्म फरमाया। इरशाद बारी ताला है, वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। तर्जमा, और अल्लाह इसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जो कुछ सिखाया इसके बारे में इरशाद फरमाया कि तर्जमा कि अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, रहमान ने कुरान सिखाया। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, व इन्ना तलकुलकल कुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। तर्जमा, और ए महबूब बेशक आपको हिकमत वाले इल्म वाले की तरफ से कुरान सिखाया जाता है। और एक जगह वादे तौर पर फरमाया कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। तर्जमा, और आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप न जानते थे। इससे मालूम हुआ कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
वसल्लम का इल्म तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्कि तमाम मखलूक से ज्यादा है। नाज़रीन, इस सूरत का नाम ही अल्लाह ताला के सफाती नाम पर है, जो अल्लाह ताला का बहुत प्यारा नाम है। इस सूरत की तिलावत का तरीका मुलाहिदा फरमा लीजिए। आपने सुबह उठकर जो पहला काम करना है, आपने वजू करना है और वजू के बाद आपने नमाज फजर अदा करनी है और नमाज फजर अदा करने के बाद आपने कोई और काम नहीं करना, बल्कि आपने सूरत रहमान की तिलावत करनी है। याद रखें, सूरह रहमान के 3 रकू हैं। आपने सूरत की तिलावत शुरू करने से पहले नियत कर लेनी है कि आप ये अमल किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए या किसी मरीज के लिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इस सूरत की तिलावत को शुरू करना है। जब आप पहले रकू पर पहुंचे तो आपने 27 मरतबा अल्लाह ताला का सिफाती नाम या रहमानु पढ़ना है। 27 मरतबा या रहमानु या रहमानु या रहमानु पढ़ने के बाद अगले रकू की तिलावत करनी है और इस रकू को पूरा पढ़ने के बाद आपने 27 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम या रहमानु फिर 27 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद तीसरा रकू पढ़ना शुरू करें। सूरत को मुकम्मल करने के बाद आपने 27 मरतबा अल्लाह ताला का सिफाती नाम या रहमानु या रहमानु या रहमानु पढ़ना है। इस तरीके पर आपने सूरत रहमान की तिलावत मुकम्मल करनी है और आपने पानी पर दम कर देना है। पानी आप कोशिश करें कि पहले से अपने पास रख लें। ये दम किया हुआ पानी आपने मरीज को पिलाना है। अगर आपने अपने लिए ये वजीफा किया है तो खुद पानी पी लें और अगर ये अमल किसी मरीज के लिए किया है तो इस मरीज को ये पानी पिला दें। इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से हर बीमारी से शिफा मिलेगी। इस अमल को आपने जारी रखना है जब तक आपकी बीमारी खत्म ना हो। आपने इस अमल को जारी रखना है। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना ही जल्द आपको शिफा मिलेगी। अमल के साथ साथ नमाज की पाबंदी भी लाजमी करें और हस्बे तौफीक रोजाना सदका भी करें। इंशाअल्लाह आपके जिस्म की हर बीमारी खत्म हो जाएगी। वीडियो के आगाज में हमने बात की थी कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन हमारे यकीन कमजोर हो चुके हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह के कलाम पर मुकम्मल यकीन रखें और अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखें। वही जात है जिसके हाथ में शिफा है। जब आप इस सूरत का अमल इस गुमान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला आपको इस सूरत की बरकत से शिफा देगा, तो अल्लाह ताला आपको जरूर शिफा अता फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, हम आपको बताते हैं कि कुरान मजीद के शिफा होने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया है और हमने कुरान मजीद को उतारा जो कि मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। यानी कुरान मजीद शिफा है, कुरान मजीद रहमत है और कुरान मजीद हिदायत है। किसके लिए? तो वो भी वादे फरमा दिया ये मोमिनों के लिए शिफा है, जैसा कि सूरह हामीम सजदे में फरमाया है। और हमने ऐसा कुरान नादिल किया जो तमाम मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। आयत नंबर 44। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, आप कह दीजिए कुरान मजीद उन लोगों के लिए जो ईमान लाए उनके लिए हिदायत और शिफा है। सूरह यूनस आयत नंबर 57। इन तमाम आयात और इशादात से मालूम हुआ कि कुरान पाक ईमान वालों के लिए शिफा है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि कुरान पाक ईमान वालों की क्या निशानियाँ बताता है, यानी कुरान पाक के मुताबिक ईमान वाले कौन होते हैं। इस बारे में सूरह अनफाल की आयत 2 से 4 में इरशाद खुदाबंदी है, बस ईमान वाले तो होते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब अल्लाह की आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती है तो वो आयत इनके ईमान को और ज्यादा मजबूत कर देती है और वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और हमने जो कुछ उनको दिया है वो इसमें से खर्च करते हैं। यानी लोग सच्चे मोमिन हैं। लिहाजा जो कोई अपने जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से निजात हासिल करना चाहता है और इसकी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला की रहमतें इस पर नादिल हों और वो हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो, तो उसे हकीकी मानों में ईमान वाला बनना होगा। नादरीन, बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखते हुए अल्लाह ताला से कुरान के वसीले से शिफा तलब करें। सूरह रहमान के बारे में आपको बताते चलें कि सूरत रहमान को कुरानी जीनत कहा जाता है, जैसे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है
کہ میں نے रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि हर चीज के लिए हुस्न और जमाल और जीनत और खूबसूरती है, और कुरान का हुस्न और जमाल और जीनत और खूबसूरती सूरत रहमान है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक दफा अपने सहाबा के पास तशरीफ लाए। बस आपने सूरत रहमान अव्वल से आखिर तक तिलावत फरमाई। सहाबा अकराम खामोश सुनते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सूरत रहमान जिन्नात के ऊपर पढ़ी, वो जवाब देने में तुमसे ज्यादा अच्छे थे। मैं जब भी फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता तो वो जिन्नात कहते थे, यानी ए हमारे रब, हम तेरी नेमतों में से किसी भी नेमत को नहीं जुटलाते, तमाम तरीफे तेरे लिए हैं। सूरत रहमान में बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। इसमें इन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है जो ला इलाज तसव्वुर की जाती हैं। अगर हम दीन के करीब आ जाएं और अल्लाह को याद करके उसकी हिदायत पर अमल करें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। यकीनन कुरान पाक में हमारी हर मुश्किल और मसाइल का हल छुपा है। हम कोशिश करें कि हम दीन और कुरान को जानें तो यकीनन हमारे लिए ये अमल बाइस निजात होगा। अल्लाह वालों, सूरत रहमान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी तासीर रखी है। इसमें हर बीमारी से शिफा है, लिहाजा इस अमल को लाजमी करें और सदका जारिया की नियत से शेयर भी जरूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।